Assalamualaikum. Today's lecture is about neural networks. If we consider an overview of the classifiers, then here is the brief overview. 1950s was the era of the perceptron, that is a single layer perceptron and multi-layer perceptron, and so on. In 1980s, the era of neural networks that were used in different classification problems, and so on. 2000s was the era of sport vector machine, which was extensively used to classify the different problems, and so on. It's still used nowadays. That is sport vector machine, also used nowadays to classify. And similarly, in 2010s, the age of the deep network, that is deep learning, which works on the basis of known algorithms. But deep learning classifiers or algorithms or frameworks require high computational power, and so a large data sets required to train these algorithms. In abstract level, we have artificial intelligence, and then machine learning is part of artificial intelligence. In machine learning, as we discussed, different classifiers like sport vector machine, k nearest neighbor classifier, and so on, naive Bayes, and a large number of classifiers exist or belong to the machine learning family that are used to classify different images and objects, and to recognize instances, and so on, to perform different tasks, and so on. Today we will discuss about deep learning, that is a subset of machine learning in which multi-layered neural networks learn from vast amount of data, as we have already discussed in the previous slide. That is, deep learning requires high computational power, like you need 16 GB, around 16 GB of RAM, and so on. GPUs also require most of the time to process large training data sets, and so on, large amounts of data sets. Here is a simple structure of a simple perceptron, in which you have a set of inputs and different weight values, and a summation function and an activation function, like step function, and on the basis of activation function and output is generated, right? So basically, the perceptron or a neural networks are inspired from the biology. And if you consider on the left hand side, a cartoon like drawing of a biological neuron, and its mathematical representation is shown on the right side. तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास ये एक सिंपल स्ट्रक्चर है, और राइट साइड पे मैथमेटिकल फॉर्म है. इसमें अगर आप देखें तो आपके पास inputs multiply by weight values, and Bayes value is also added in this product, and on the basis of an activation function, output level is generated. So basically, neural nets or perceptrons are loosely inspired by biology, but they are certainly are not a model of how the brain works, right? एक्चुअली ये ब्रेन के अकॉर्डिंग मॉडल नहीं है, बट ब्रेन नर्वियस सिस्टम और जो भी न्यूरॉन्स हैं, लाइक हमारे ब्रेन में जिस तरह से न्यूरॉन्स वर्क कर रहे हैं उसको कॉपी किया गया है. एक्चुअली वो मॉडल नहीं है, बट उसके अकॉर्डिंगली न्यूरल नेटवर्क का कॉन्सेप्ट प्रपोज किया गया है कि जिस तरह से ह्यूमन ब्रेन में एक लिंकेज क्रिएट होती है, लाइक हम चीज़ों को रिलेट करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम हम इवेंट्स को रिलेट करते हैं. लाइक हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल इन दिस पर्टिकुलर लोकेशन पे हम 4 फ्रेंड्स थे, और ये बात डिस्कस हो रही थी, तो हमने ये चीज़ भी साथ डिस्कस की थी. देन हम इसको किसी और मेमोरी एंड सो ऑन रिलेट करते हैं, ठीक है. तो बेसिकली क्या है, न्यूरॉन्स में भी यही कॉन्सेप्ट है कि हमारे पास न्यूरॉन्स में या न्यूरल नेटवर्क्स में आपके पास कुछ इनपुट न्यूरॉन्स हैं, कुछ हिडन लेयर्स हैं, वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, एंड कनेक्शन की बेस पे वो एक फाइनल आउटपुट जनरेट करते हैं. जिस तरह से रियल लाइफ में हम एक स्टोरी बिल्ड करते हैं, और उसकी बेस पे हम बताते हैं कि ऐसा हुआ था, एंड उसको किसी और इवेंट से रिलेट करते हैं, एंड सो ऑन.
तो बेसिकली परसेप्ट्रॉन हमारे पास एक सिंपलेस्ट न्यूरल नेटवर्क है, ठीक है। हमने बात की हमारे पास इनपुट्स हैं, कुछ वेट वैल्यूज हैं, और बेसिकली यहाँ पे हम 22 वैल्यू 1 भी ऐड करते हैं, ठीक है, समेशन में, लाइक x1 w1 x2 w2 एंड सोन प्लस 1, ठीक है, प्लस बी हम करते हैं, तो बी 22 वैल्यू अगर हम 1 कंसिडर करें तो प्लस बी। तो बेसिकली 22 वैल्यू हम यहाँ पे ऐड कर रहे होते हैं कि हम कहते हैं कि हमारे पास जो भी एक्टिवेशन फंक्शन है उसको हम शिफ्ट कर सकते हैं, लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर सकते हैं या राइट साइड पे शिफ्ट कर सकते हैं। अगर हम 22 वैल्यू ना यूज़ करें तो हमारे पास आउटपुट जो है वो बेसिकली ओरिजिन से पास हो रही होती है। अगर हम इसको डायग्रामेटिकल वे में शो करें तो हमारे पास आउटपुट ओरिजिन से पास हो रही होती है। तो बेसिकली 22 हमारे पास मोर फ्लेक्सिबिलिटी ऐड करता है मॉडल में, ठीक है। इसमें बेसिकली हम उस टाइम भी हमारा मॉडल लर्न कर सकता है जब हमारे पास ऑल इनपुट्स ज़ीरो हैं, स्टिल 22 वैल्यू की बेस पे मॉडल लर्न कर सकता है, ठीक है। तो बेसिकली 22 वैल्यू की ये इम्पोर्टेंस है, मॉडल बिल्डिंग में ये मेजर रोल प्ले कर रहा होता है, ठीक है। तो ये सिंपल परसेप्ट्रॉन है, ठीक है। और सिंपल परसेप्ट्रॉन को ही कॉन्केटिनेट करने के बाद हम न्यूरल नेटवर्क्स या डीप नेटवर्क्स बिल्ड कर सकते हैं। तो न्यूरल नेटवर्क बेसिकली हमारे पास क्या है, connect a bunch of perceptrons together, like if you see these figures, then here set of perceptrons or bunch of perceptrons are connected together, right? Neural network is basically a connection of connected perceptrons। तो अगर आप इस फिगर को देखें तो आपको कितने परसेप्ट्रॉन मिल रहे हैं, ठीक है, कितने परसेप्ट्रॉन को कंबाइन करके ये न्यूरल नेटवर्क बनाया गया है। जैसा कि हमने बात की थी कि सिंपल परसेप्ट्रॉन में हमारे पास क्या है, सेट ऑफ इनपुट्स हैं, और एक हमारे पास न्यूरॉन है, नोड है, ठीक है, जिसके प्रोडक्ट्स की बेस पे हम फर्दर कोई आउटपुट जनरेट करते हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास सिंगल परसेप्ट्रॉन है, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें, जो बेसिकली हमारे पास एक न्यूरल नेटवर्क है, तो यहाँ पे हमारे पास कितने परसेप्ट्रॉन हैं, अगर आप देखें तो आपके पास बेसिकली हाउ मेनी परसेप्ट्रॉन इन दिस न्यूरल नेटवर्क, तो ये हमारे पास एक परसेप्ट्रॉन है, एंड सो नेक्स्ट एंड नेक्स्ट। इसको वन बाय वन देख लेते हैं कि आपके पास कितने परसेप्ट्रॉन्स इस न्यूरल नेटवर्क में इंक्लूडेड है। लाइक दिस इज वन परसेप्ट्रॉन, ये 3 इनपुट्स हैं, और ये आपके पास यहाँ पे बेसिकली फंक्शन की बेस पे आप कोई आउटपुट जनरेट करेंगे। 1 परसेप्ट्रॉन एंड सो ऑन, 2 परसेप्ट्रॉन एंड सो ऑन। आप बात करें तो ये आपके पास अभी 3 परसेप्ट्रॉन्स हैं एंड सो ऑन, 4 परसेप्ट्रॉन। देन आप कंटिन्यू करें तो 4 ये हैं। देन यहाँ पे इनपुट्स एंड वेट्स की बेस पे आप यहाँ पे कोई वैल्यूज़ जनरेट करेंगे, आउटपुट जनरेट करेंगे। दिस इज 5th परसेप्ट्रॉन एंड सो ऑन 6 परसेप्ट्रॉन। तो बेसिकली अगर हम इस न्यूरल नेटवर्क की बात करें तो 6 परसेप्ट्रॉन की बेस पे आपने ये न्यूरल नेटवर्क जनरेट किया है। तो इसी तरह से डीप नेटवर्क में मोर एंड मोर हिडन लेयर्स हम ऐड करते जाते हैं, ठीक है। अगर आप इसको देखें तो ये आपके पास इनपुट लेयर है, देन नेक्स्ट सो ऑन आपके पास हिडन लेयर है, और फाइनल लास्ट आपके पास आउटपुट लेयर होती है, ठीक है। तो दिस इज आल्सो कॉल्ड अ मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन, ठीक है। एक सिंगल परसेप्ट्रॉन एंड देन मोर एंड मोर लेयर्स की बेस पे मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन या फिर डीप नेटवर्क भी इसको कह रहे होते हैं। This layer is a fully connected layer. Basically all pairwise neurons between layers are connected. अगर इसमें आप देखें तो आपके पास ये इनपुट जो है ये बेसिकली इन 4 न्यूरॉन से कनेक्टेड है, ठीक है, 4 से, एंड सो नेक्स्ट भी ऑल 4 से। ऐसा नहीं है कि कहीं पे फर्स्ट है वो 2 से कनेक्टेड है, थर्ड से नहीं है, एंड सो। तो जहाँ पे इस तरह से कनेक्शन होता है वो बेसिकली हमारे पास फुली कनेक्टेड लेयर होती है, ठीक है। आपके पास एटलीस्ट 1 फुली कनेक्टेड लेयर हर मॉडल का पार्ट होगी, मोर देन 1 भी हो सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें तो आपके पास ये फुली कनेक्टेड लेयर है, और इसी तरह से नेक्स्ट भी हमारे पास फुली कनेक्टेड लेयर है, क्योंकि आपके पास ऑल न्यूरॉन्स इन द प्रीवियस लेयर आर कनेक्टेड टू द नेक्स्ट लेयर न्यूरॉन्स, ठीक है। यहाँ पे
टू न्यूरॉन्स है नेक्स्ट लेयर में। तो हिडन लेयर में जितने भी न्यूरॉन्स हैं इन सब से कनेक्टेड है, ये भी इन टू से कनेक्टेड है, एंड सो नेक्स्ट भी टू से कनेक्टेड है, एंड सो नेक्स्ट एंड नेक्स्ट। तो जहाँ पे आपके पास इस तरह का कनेक्शन हो रहा हो वहाँ पे हम कहते हैं फुली कनेक्टेड लेयर। तो वन फुली कनेक्टेड लेयर मस्ट आपके मॉडल का पार्ट होगी। तो अगर हम न्यूरल नेटवर्क्स बेसिकली इनका एनालिसिस करें तो हम बता सकते हैं हाउ मैनी न्यूरॉन्स और परसेप्ट्रॉन्स in this model are available। तो बेसिकली यहाँ पे आप देखें तो आपके पास वो मैनी न्यूरॉन्स परसेप्ट्रॉन, तो जैसा से ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था, ये हमारे पास 4 परसेप्ट्रॉन्स हैं और ये हमारे पास अगेन 2 परसेप्ट्रॉन्स हैं और न्यूरॉन्स हैं। तो बेसिकली हमारे पास 6 परसेप्ट्रॉन और न्यूरॉन्स इस नेटवर्क में हैं। और वो मैनी वेट वैल्यूज़ और एजेस, ठीक है, जिनको हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। इनिशियली तो वेट वैल्यू स्पेसिफाई करते हैं, दैन बैक प्रोपोगेशन में हम वेट्स एडजस्ट करते हैं। तो वेट्स की वैल्यूज़ कितनी है अगर आप देखें तो आपके पास बेसिकली ये आप एजेस काउंट कर रहे होते हैं, तो ये 3 इनपुट्स हैं, 3 इनपुट्स, ईच इनपुट इज कनेक्टेड टू द नेक्स्ट न्यूरॉन इन द हिडन लेयर, राइट। 4 outgoing arrows from the each input, right? So basically 3 inputs हैं, 4 outgoing arrows from each one, and it means 4 3s are 12, 12 edges or 12 weight values। Similarly here in hidden layer each neuron is connected to the uh, next neuron in the next in the next layer, like fully connected layer. Here 4 neurons in the hidden layer and 2 neurons in the last layer, it means 4 multiplied by 2, right? तो बेसिकली हमारे पास 20 वेट वैल्यूज़ हैं, या 20 एजेस में 20 वेट वैल्यूज़ आपके पास इस न्यूरल नेटवर्क में हैं। तो आप गेस कर सकते हैं कि आपके पास जितना डीप न्यूरल नेटवर्क होगा इतनी ज़्यादा आपके पास वेट वैल्यूज़ होंगी, और इतना आपको फिर उस मॉडल को बिल्ड करने में या ट्रेन करने में इतना ज़्यादा टाइम आपको रिक्वायर होगा। हाउ मैनी लर्नेबल पैरामीटर्स इन टोटल, तो बेसिकली क्या है कि आपके पास 20 तो वेट वैल्यूज़ हैं, ठीक है, 4 आपके पास जहाँ पे 22 वैल्यूज़ हैं, ईच परसेप्ट्रॉन रिक्वायर 1 22 वैल्यू, ठीक है, एंड सो ऑन। these two input these two neurons also require 2 bias values, right? As we have already discussed in the simple perceptron diagram, that each perceptron require 1 bias value. uh, Here we have discussed, right, 1 perceptron require 1 bias value। तो वहाँ पे आपके पास 6 परसेप्ट्रॉन्स थे, ठीक है, तो आपको बेसिकली 6 बाइस वैल्यू आपको रिक्वायर होंगी। तो ये बेसिकली 20 वेट वैल्यूज़ हैं, 4 यहाँ पे 4 परसेप्ट्रॉन की 22 वैल्यूज़ एंड 2 बाइस वैल्यूज़ आर हेयर, टोटल 26 बेसिकली आपके पास लर्नेबल पैरामीटर्स हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपने कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क एंड सो ऑन, जब आप मॉडल की समरी प्रिंट करते हैं तो वहाँ पे आपने देखा होगा मॉडल समरी में मस्ट एट द एंड ये मेंशन होता है कि लर्नेबल पैरामीटर्स इस मॉडल में कितने हैं। या अगर आप ट्रांसफर लर्निंग का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं तो वहाँ पे कुछ पैरामीटर्स को आप जैसे कहते हैं कुछ लेयर्स का आप फ्रीज कर देते हैं, तो वहाँ पे मेंशन होता है कि इतने लर्नेबल पैरामीटर्स हैं, उतने पैरामीटर्स फिक्स्ड हैं जो आप लर्न नहीं कर रहे या आपका मॉडल लर्न नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये बेसिकली इस तरह से लर्नेबल पैरामीटर्स कैलकुलेशन हो रही होती है हमारे पास नेटवर्क्स में। परफॉर्मेंस यूजली टॉप्स आउट एट 2-3 लेयर्स, डीपर नेटवर्क डोंट रियली इम्प्रूव परफॉर्मेंस। तो मोस्टली जो हमारे पास टास्क हैं 2-3 लेयर्स में हाई रिकग्निशन एक्यूरेसी अचीव हो जाती है, विद द एक्सेप्शन ऑफ द कन्वोल्यूशनल नेटवर्क फॉर इमेजेस, ठीक है। कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क बेसिकली द टाइप ऑफ न्यूरल नेटवर्क, और इसमें जिसमें स्पेसिफिकली हम इमेज क्लासिफिकेशन से डील करते हैं, तो ये हमारे पास क्वाइट डीपर नेटवर्क्स होते हैं, कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। तो बेसिकली फॉरवर्ड प्रोपगेशन एंड बैक प्रोपगेशन इन न्यूरल नेटवर्क क्या है। फॉरवर्ड प्रोपगेशन में सिंपली आप आउटपुट कंप्यूट करते हैं इनपुट्स की बेस पे और वेट वैल्यूज़ की बेस पे। एक्टिवेशन फंक्शन आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉब्लम।
ReLU एक्टिवेशन फंक्शन, sigmoid, softmax एंड so on। तो बैक प्रोपागेशन क्या है, जिसमें बेसिकली आप मॉडल एक्यूरेसी इनहेंस करने के लिए, रिक्वायर्ड आउटपुट अचीव करने के लिए आप क्या करते हैं, बैकवर्ड मूव करते हैं अपने नेटवर्क में। ठीक है, अगर आप इस डायग्राम को देखें तो आपके पास इनपुट्स थी, ठीक है, 2 इनपुट्स थी, और आप करते क्या है, वेट वैल्यूज़ की बेस पे, फॉरवर्ड प्रोपागेशन में इनपुट्स एंड वेट वैल्यूज़ की बेस पे आप क्या करते हैं, किसी एक्टिवेशन फंक्शन की बेस पे प्रिडिक्शन करते हैं। ठीक है, आपने लाइक लैपटॉप प्रिडिक्ट करने एंड सो ऑन, आप प्रिडिक्शन करते हैं, और आपके पास ट्रू लेबल्स भी होते हैं, आपके पास ट्रू वैल्यूज़ भी हैं। बोथ की बेस पे आप देखते हैं कि आपके पास एक्यूरेसी क्या आ रही है। ठीक है, तो बेसिकली अगर आप यहाँ पे देखें तो आप क्या करते हैं, फॉरवर्ड प्रोपगेशन में जो प्रिडिक्शन आपने की है, ठीक है, जो लेबल्स आपने प्रिडिक्ट किए हैं और जो आपके पास ट्रू वैल्यूज़ हैं, उनकी बेस पे आप लॉस फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, देन इस लॉस की बेस पे, लॉस स्कोर की बेस पे आप बैकवर्ड मूव करते हैं, और इसमें बेसिकली आप वेट वैल्यूज़ अपडेट करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, बैकवर्ड प्रोपगेशन है। आप आइटरेटिवली ये प्रोसेस परफॉर्म करते रहते हैं अनटिल आपके पास जो लॉस फंक्शन है इज मिनिमाइज्ड। ठीक है, आपके पास लॉस जब तक मिनिमम आता है, तो ये बेसिकली जो साइकिल आप रिपीट कर रहे हैं, फॉरवर्ड प्रोपगेशन एंड बैकवर्ड प्रोपगेशन, इस साइकिल को हम कहते हैं कि आपके पास इतनी अप्रोचेस आपने परफॉर्म किए हैं अपने डाटा में से। ठीक है, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, अपडेट एंड सो ऑन। तो जिस तरह से आपने देखा होगा, आपको भी डीप लर्निंग मॉडल जब ट्रेन करते हैं तो नंबर ऑफ अप्रोचेस आप स्पेसिफाई कर रहे होते हैं, ये एक इम्पोर्टेंट हाइपर पैरामीटर है, नंबर ऑफ अप्रोचेस आप कितनी परफॉर्म कर रहे हैं। तो बेसिकली क्या है, इस साइकिल को शो कर रहा है। ठीक है, कि आप अपने डाटा में से कितनी ये रेपिटेशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो बहुत सारे जिसे कहते हैं रिसर्च पेपर में भी आपने देखा होगा, तो उसमें मस्ट स्पेसिफाई करते हैं कि हमने ये रिकग्निशन एक्यूरेसी इतनी अप्रोचेस की बेस पे अचीव की है। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा अप्रोचेस होंगे, इतना आप कहते हैं कि मॉडल इतना ज़्यादा बेस्ट नहीं है। एक रिसर्चर जिसने लेस अप्रोचेस की बेस पे हायर एक्यूरेसी अचीव किया, तो उसका मॉडल बेस्ट कंसिडर होगा एज कम्पेयर टू सेकेंड मॉडल जिसमें नंबर ऑफ अप्रोचेस हाई है। ठीक है, अगर रिमेनिंग पैरामीटर सारे सेम है दोनों के, तो अगर आप जस्ट इसकी बेस पे देखें तो ये बेसिकली रिपीटिशन, अगर आप लेस रिपीटिशन की बेस पे अचीव कर लेते तो इट मीन्स आपने बेस्ट वे में अपने मॉडल को ट्रेन किए। तो न्यूरल नेटवर्क या लार्ज नंबर ऑफ कैटेगरीज है। ठीक है, कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, बेसिकली हमारे पास इमेजेस बेस्ड या स्पेशल डाटा हम इसमें टारगेट कर रहे होते हैं। कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क में आपने इमेजेस की बेस पे कोई टास्क परफॉर्म करना है, लाइक आपने क्लासिफिकेशन करनी है, डिटेक्शन करनी है, सेगमेंटेशन करनी है एंड सो ऑन। तो ये डिफरेंट टास्क आप स्पेसिफिक कैटेगरी कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क की बेस पे परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से आपके पास स्पीच डाटा है या टेक्सचुअल डाटा एंड सो ऑन, तो आप रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क यूज़ करते हैं एंड सो ऑन। हमारे पास जनरेटिव मॉडल्स भी हैं न्यूरल नेटवर्क में, जिसमें बेसिकली आपके पास 2 नेटवर्क्स होते हैं, जनरेटर एंड डिस्क्रिमिनेटर, और बेसिकली आप रियलिस्टिक इमेजेस, वीडियोस एंड सो ऑन डाटा जनरेट कर रहे होते हैं जनरेटिव मॉडल्स की बेस पे। फॉर एग्जांपल जनरेटिव एडवर्सियल नेटवर्क या जेन मोर फ्रिक्वेंटली नोअडेज यूज़ हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से हमने बात की थी कि डीप लर्निंग में हमें लार्ज डाटा सेट्स रिक्वायर होता है, लार्ज साइज ट्रेनिंग डाटा सेट, मॉडल को बेस्ट वे में ट्रेन करने के लिए और हायर एक्यूरेसी अचीव करने के लिए। तो सम टाइम इतना ज़्यादा ट्रेनिंग डाटा अवेलेबल होना और एक्वायर करना डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो हम जनरेटिव एडवर्सियल नेटवर्क को भी यूटिलाइज कर सकते हैं अपने ट्रेनिंग डाटा को एक्सटेंड करने के लिए। ठीक है, और समटाइम हम इसको इंडिपेंडेंटली भी एज अ रिसर्च यूज़ कर लेते हैं, लाइक हमारे पास जिस तरह से टेक्स्ट टू इमेज जनरेशन है, हम कहते हैं हम कुछ टेक्स्ट दें, लाइक हम कहते हैं लैपटॉप, तो हमारा मॉडल लैपटॉप के डिफरेंट इमेजेस जनरेट करके दे दे। ठीक है, तो इसमें भी इस तरह की एप्लीकेशन में भी ये मोर फ्रिक्वेंटली जेन यूज़ हो रहा है। इसी तरह से आप अपने डाटा ट्रेनिंग डाटा सेट साइज को भी एक्सटेंड कर सकते हैं एंड सो ऑन एटसेट्रा। ठीक है, a large number of other categories of neural networks are also available. So here are the references.
So this lecture was about neural network, right? Neural network की basics, neural network क्या है, और more and more layers ऐड करके आप इस तरह से पैरामीटर्स कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। जितना आपका डीपर नेटवर्क होगा इतने ज़्यादा आपके पास लर्नेबल पैरामीटर्स हाई होंगे, ठीक है। इतना लार्ज टाइम विल बी रिक्वायर्ड टू ट्रेन द मॉडल एंड सो ऑन, ठीक है। So basically, in next lecture we will discuss about convolutional neural network that is more frequently used in image related tasks and so on.